Hello everyone, good afternoon and welcome to the session. Sorry. So today I'll be uploading this video, and this video has been uploaded because this is one of the most important concept that many of us feel we know, but we actually don't know it, right? So yesterday, as you all know that your public notice has been issued by NTA, and according to that your exam date has been announced, and the dates that are being announced are somewhere between 21st Feb to 10th March, right? So we have around 50 days for practice. Okay, so yesterday discussed this thing and I had a video. You all can watch that video. I have already shared the link on the Telegram group. So in that video I discussed that what will be our strategy related to your December 2022 exam, right? And what all we'll be planning and how we'll be going further for that particular series, right? So I'll be starting that question answer series from tomorrow, that is from 1st January. Meanwhile, today I thought that it's better to cover some topics that I feel that are important for your exam point of view and for your knowledge point of view. So we have discussed this already, right? We have discussed this already, and you all know that what all topics we can cover, right? So as you all know that we have discussed what all topics we should cover, like we have discussed of a few topics from discrete mathematics, few topics from DBMS, few topics from TOC, few topics from compiler design and everything. So from compiler design we thought of five topics, and today I'll be taking the topic that I'll be taking is intermediate code generation and code optimization. Now when we talk about compiler, the first thing that comes to our mind is that key, first and follow, parsers, right? Then syntax tree, then lexical analysis. The main part that we have, that is your syntax directed translation, SDTs, जिसमें आपके inherited attributes आते हैं, right? Synthesized attributes आते हैं. So this is what comes in our mind. But we just forget that there are more concepts that are important other than these, right? That is, you can have your code optimization, how you can optimize the code. And lately if you notice in your exam, you can see that they have asked certain questions जिसमें they have given concepts related to your code optimization part. Right. So that is why I feel that it is important to cover these topics so that you can revise it, and when we will discuss the questions then you will be able to answer those questions. Okay, so all those who are new to the channel, I'll request you all ki please join this Telegram group, that is t.me/netria and you can join this Telegram group, and you can get the notification about the classes, you can get the links about the classes, you can get the PDF about the classes, right? After uploading this video, that today's video, I'll be sharing the PDF with all of you, so you can download that PDF. The only thing I want is ki while we are discussing this, while we are studying any concept, our full attention should be on understanding the concept, right? Rather than pausing and copying and pausing and copying, that will not work for us, because then we'll not be able to understand the concept. Our main aim should be to understand the proper concept. Okay, so please join this Telegram group, and if you want to contact me, if you want to have a chat with me, or any particular, if you have any query and you want to discuss it with me, I'll request you all keep please contact me via Telegram. You can join my Telegram group, and from this Telegram group you can find my Telegram contact, and then you can message me related to the whatever your query is. If you have any query related to subscription or related to any course, then you can write us at admin@gatelectures.com, or you can also call us at 98218 76104 or 98218 76102. So whatever your queries are, you can see what type of queries you have, and then you can talk to that respective person. Okay, so this is the website, that is digimento.com. So I'll suggest you all ki since we are just 50 days away from our exam,
So I'll recommend ki please, if you want, you can go for test series. If you feel that your preparation is on point and now you are ready for test, you can go definitely for test series. There are mini test series, mega test series, so जो भी आपको feasible लगे आप उसको buy कर सकते हो. And if you're planning to buy any course, you can definitely go for it. I have added this feature that what we'll be doing is we'll be giving a if you will ask, we'll be giving you a personalized timetable. That is a timetable and a strategy that will be suited for you. Okay, so only to the enrolled students. This will be only for the enrolled students. So all the students who will be enrolling in the course, after enrolling, share your details with me on Telegram. Okay, and we'll be sharing the contacts. We'll be sharing the entire timetable, ki how you should proceed or how you should know carry out further for yours. What should be your strategy? How you should prepare for the upcoming exam. Okay. So you can visit this website digimentor.com. You can look for welcome 40 code. यहाँ पे code है, आप 40% off के लिए code apply कर सकते हैं. You can also look out for the courses available. Then you can also look for the live classes, the downloads, what all options are available, and there are certain other exams also that you can proceed towards too. And this is the Android app. So right now we have Android app only, but all those who are iOS users, you can still access the app via Telegram, via your laptop. Okay, so Digimento Education is the name of the app, so you can access it. All the Android users can download this app. Okay, so let's start with today's topic, that is your intermediate code generation and code optimization. Now first thing that we have is compiler. What is a compiler? Many of you are aware of it, ki what is a compiler and what is an interpreter. You must have heard these two terms together almost. Ki first one is your compiler and second one is your interpreter. You all must have heard these two terms, right? So basically, what is compiler and what is interpreter and what is the difference between the two? So base compiler is basically a device that helps us to convert a high level language into a low level language. That is, हाई लेवल लैंग्वेज आपकी होगी 0 1 की फॉर्म की जो लैंग्वेज है उसको आप असेंबली लैंग्वेज में या किसी भी लो लेवल लैंग्वेज में जब कन्वर्ट करते हो, देन वी से it is a work of compiler. What is the difference between compiler and interpreter? Compiler basically compiles, or you can say that it converts the high level language into low level language in one go. Matlab, if you are looking at this particular page, okay, and this is a page that has high level language and you want to convert it into a low level language, so compiler will take the entire page and then it will do the conversion. Okay, but what happens with interpreter? Interpreter go line by line. So interpreter will take one line at a time and then it will interpret, it will convert the languages. Okay, so what is the difference between compiler and interpreter? The main difference between compiler and interpreter is that compiler takes the whole document or whole text in one go, whereas interpreter goes one line by line. Okay, so interpreter takes a much more time as compared to compiler, so that is why compiler is much more preferred over interpreter. So what is the work of compiler? Converting high level language to low level language. Okay. Then next we have this diagram. I am not sure whether many of you have seen this diagram or many of you are aware of this diagram, but this is how it works. So we have the source program. What is a source program? Basically, source program is whatever you write. ठीक है, जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है, जो भी आपने कोडिंग करी है, दैट इज वेदर इट इज इन सी लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज और जो भी लैंग्वेज आपको फीजिबल लग रही है, दैट इज योर सोर्स प्रोग्राम. ठीक है, सो बेसिकली दीज आर दी स्टेप्स फॉर लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कि आपकी जो लैंग्वेज वो प्रोसेस कैसे हो रही है. मतलब अब तो ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया, बट अब हम ये देख रहे हैं कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कन्वर्टिंग दिस सोर्स प्रोग्राम टू दिस टारगेट मशीन कोड. ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज बेसिकली जो आपकी मशीन कोड है वो नहीं होगा. ठीक है, दैट वाज इफ आई सेड, आई थिंक आई जस्ट सेड इट, इट वाज अ मिस्टेक ओवर हियर. ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि सोर्स प्रोग्राम आपका कैसे कन्वर्ट होता है. सबसे पहले अगर आपको ध्यान हो, whenever you write a C code या whenever you write any code, let's say a Python code or a C code or C++ code, what we do is we write some header files, है ना, we write some header files, we add some files.
right? So what happens over here in preprocessor? What does preprocessor do? Preprocessor removes, I'll just write over there, removes hash include. जो आपके अगर C की बात करें, if we talk about C, so we write this, right? hash include stdioh, ऐसे हम लिखते हैं. अगर आपको ध्यान हो, that we write some header files like this, hash include stdioh dot h, then hash include kunayo dot h, right? This is how we write some languages. मतलब हमारी जो हेडर फाइल्स होती हैं ऐसे हम ऐड करते हैं सी. सो व्हाइल वी आर डूइंग दिस, सो प्री प्रोसेसर बेसिकली रिमूव दीज हैश इंक्लूड डायरेक्टिव्स. ठीक है, रिमूव्स हैश इंक्लूड डायरेक्टिव्स एंड ऐड द फाइल. ठीक है, मतलब कि आपकी जो भी फाइल, जो भी आप अगर इसको रिमूव करो, ठीक है, नाउ व्हेन यू आर रिमूविंग दिस, सो बेसिकली यू आर रिमूविंग द एंटायर header file. So what it will do is it will remove this hash include, it will remove this, and it will add the file over there. So it is basically including the file. So this is the work of preprocessor. ठीक है, in terms of compiler, in terms of the source program, what this preprocessor is doing? Preprocessor is basically removing all the header files and including and adding those files in the format that is modified now. So your source program is modified, that is all the hash files and all these header files are removed. Now what does compiler will do? Compiler will convert this source program into assembly language, that is your high level language, into an low level language, that is an assembly language, and it will do in this in one go. मतलब एक बार में पूरा आपका जो भी टेक्स्ट है इट विल बी कन्वर्टेड. ठीक है, ऐसे नहीं लाइन बाय लाइन, इंटरप्रेटर गोज लाइन बाय लाइन, बट कंपाइलर विल डू इट इन वन गो. उसके बाद नाउ यू विल हैव असेंबलर. ठीक है, assembler में you will add certain library files. So the target assembly program will be sent to assembler where certain library files will be added, and then you will get a relocatable machine code. Relocatable means that you can you can run that machine code on any machine. ठीक है, so relocatable machine code basically means that, I'll write it over here. relocatable machine code का मतलब हुआ that code can be loaded at any point of time and be executed. ठीक है, मतलब आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको किसी भी मशीन पे एग्जीक्यूट कर सकते हो, लोड करके एग्जीक्यूट कर सकते हो. दिस इज योर रीलोकेटेबल मशीन कोड. एंड देन वी हैव लास्ट में वी हैव लिंकर और लोडर. सो लिंकर लोडर में क्या हो रहा है? वेरियस ऑब्जेक्ट फाइल्स, आपकी ऑब्जेक्ट फाइल्स होती हैं, उसको ऑब्जेक्ट फाइल्स बेसिकली आपकी क्या हो गई, जो यहाँ से असेंबलर का जो आउटपुट होगा वो ऑब्जेक्ट फाइल्स के फॉर्म में होगा. ठीक है, सो वेरियस ऑब्जेक्ट फाइल्स कैन बी मर्ज टुगेदर इनटू अ सिंगल फाइल. जो लोडर, लिंकर बेसिकली विल मर्ज दी ऑब्जेक्ट फाइल्स. ठीक है, एंड लोडर विल लोड दोज फाइल्स इनटू दी मेमोरी. So linker और loader का क्या काम है? Linker will merge these files, that is all the object files will be merged by linker, and loader will load them into the memory. So this is how your language will be processed. ठीक है, so first we'll have preprocessor, then we'll have the compiler, then we'll have the assembler, and then we'll have linker and loader. So this is also very important to understand कि पहले क्या आता है, उसके बाद में क्या स्टेप है, उसके बाद में क्या स्टेप है. दिस इज ऑल्सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्लस इजी. कुछ टफ नहीं है इसमें. आप सबको पता है कि पहले जब आप सोर्स प्रोग्राम लिखोगे, सो ऑल द हेडर फाइल्स दैट यू हैव एडेड दे हैव टू बी एक्सेस समहाउ. ठीक है, सो दैट विल बी डन बाय प्री प्रोसेसर. Then after you have modified your source program, now you have to convert your source program into a low level language, that is an assembly language you can say. So that will be done by compiler. You can do it by interpreter also, but interpreter will do one line at a time. Okay, one statement at a time, and we as we all know that in today's time we all prefer कि जल्दी जल्दी काम हो जाए. So for that we'll have the use of compiler. Then after we have received the assembly language,
तो we'll send that into assembler में we'll get the object files, or we can say relocatable machine code. So what will happen is that the object files are splitted now. So linker will merge all these object files and loader will load them into the memory. So this is the work of your, this is how your entire program processing, language processing takes place. ठीक है, उसके बाद आपका आता है ये, दैट इज योर हाई लेवल लैंग्वेज. योर लो लेवल इज बेसिकली योर असेंबली कोड. अगर आप यहाँ पे देखो इन दिस यू कैन सी दैट कंपाइलर को हाई लेवल लैंग्वेज मिली, दैट इज मॉडिफाइड सोर्स प्रोग्राम एंड इज कन्वर्टिंग इनटू लो लेवल लैंग्वेज. यहाँ पे हमारी लैंग्वेज हो गई असेंबली लैंग्वेज, बिकॉज आफ्टर कंपाइलर वी आर सेंडिंग इट टू असेंबलर एंड असेंबलर का इनपुट क्या है, टारगेट असेंबली प्रोग्राम. ठीक है, सो यहाँ पे दिस सिंपली मीन्स दैट compiler is converting my modified source program into an assembly language. ठीक है, so यहाँ पे वही आ रहा है कि these are the phases of compiler. First we have lexical analyzer जो आपके tokens में convert करता है ना, आपके जो भी आपका स्टेटमेंट है उसको टोकन की फॉर्म में कन्वर्ट करता है. देन वी हैव सिंटेक्स एनालाइजर, पार्स ट्री. देन वी हैव सीमेंटिक एनालाइजर. सीमेंटिक एनालाइजर में क्या है, द पार्स ट्री विद मीनिंग्स. यहाँ पे सिंपली आई एम राइटिंग कि ए है, यहाँ पे बी ऐसे आ गया, बट व्हेन वी डीलिंग विद सीमेंटिक एनालाइजर वी राइट टाइप इक्वल टू फ्लोट, टाइप इक्वल टू कैरेक्टर, मतलब एंटायर मीनिंग कि व्हाई, व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस पर्टिकुलर वेरिएबल एंड हाउ वी एक्सेस दिस वेरिएबल एंड ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, उसके बाद वी हैव इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, then we have code optimizer, then we have target code generation, and after all these phases we'll reach the assembly code. So यहाँ पे एक सिंबल टेबल है, जो जितने भी सिंबल्स आपके यूज हो रहे हैं, सिंबल्स इन सेंस जितने भी कैरेक्टर्स आपके प्रोग्राम में यूज हो रहे हैं, ऑल दीज इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द सिंबल टेबल. एंड कोई भी अगर एरर हो रही है इन एनी ऑफ द फेज, दैट विल बी हैंडल्ड बाय दिस एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म. So now this is very important to understand that these 4 phases, ठीक है, these 4 phases, these are your analysis phase. ठीक है, ये जो आपकी 4 phases हैं, टॉप की 4 phases, लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटेक्स एनालाइजर, सीमेंटिक एनालाइजर, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, ये आपकी एनालिसिस फेज है. एंड द 2 phases that is code optimizer and target code generation, ये आपकी synthesis phase है. So this is also very important to understand कि कौन सी phase कौन सी, because this also can be asked sometimes. So lexical analyzer, syntax analyzer, semantic analyzer, intermediate code generation, ये आपकी analysis phase में आ जाएगा. Code optimizer and target code generation आपकी synthesis phase में आ जाएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट वी सी नाउ इंटरमीडिएट कोड जनरेशन. तो ये आपका बेसिक हो गया, दिस इज द बेसिक ऑफ योर कंपाइलर, कि क्या आप कंपाइलर आप कब यूज करते हो, कंपाइलर आप क्यों यूज करते हो, कंपाइलर के फेजेस क्या क्या हैं, दिस इज बेसिक थिंग. ठीक है, नाउ वील अंडरस्टैंड अबाउट द 2 टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, दैट इज इंटरमीडिएट कोड जनरेशन एंड कोड ऑप्टिमाइजेशन. सो सबसे पहले आता है आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेशन. So now we'll see what is it. Intermediate code is used to translate the source code into machine code. Intermediate code lies between high level language and machine level language. So ये आपका basically है कि हमारा जो compiler है, compiler का basic work होता है to convert source code into machine code, that is high level language into low level language. ठीक है, लेकिन अब you must be thinking intermediate code का क्यों, because if you notice intermediate code is the last stage of analysis phase, right? Analysis phase की last stage है intermediate code generator. So whatever output you will be generating over here, that will be given to the synthesis phase, that is code optimizer. तो इसीलिए the code that is we are using, it is used for translating the source code into the machine code. So उस इन दोनों कोड के बीच में जो कोड हम यूज कर सकते हैं, दैट इज योर इंटरमीडिएट कोड. सो अगर आप यहाँ पे ये देखो, वी गेट व्हाट, पार्स ट्री विद ट्रांसलेशन.
ठीक है, ट्रांसलेशन मतलब यहाँ पे ये जो आपका टर्म है, ये इज दिस इज दी, इफ यू सी ओवर हेयर, or I'll just what I'll do is I'll highlight it so that it's easy to for understand. ये जो है parse tree with translation, अगर आप ध्यान दो, so this is the output of which part, which phase? Parse tree translation is the output of which phase? This is the semantic analyzer output. Yes, semantic analyzer का मतलब बताया था कि parse tree ही output होता है but with certain meanings. तो ये जो आउटपुट आया है, दैट इज योर पार्स ट्री विद ट्रांसलेशन, दिस इज द आउटपुट ऑफ सीमेंटिक एनालाइजर. दिस विल बी फेड इनटू इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, एंड यहां से विल रिसीव द इंटरमीडिएट कोड. अब इंटरमीडिएट कोड आपके क्या हो सकते हैं? पोस्ट फिक्स नोटेशन कैन बी इंटरमीडिएट कोड, 3 एड्रेस कोड कैन बी इंटरमीडिएट. ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पोस्ट फिक्स नोटेशन भी और 3 एड्रेस कोड भी. ठीक है, सो इन दी एनालिसिस सिंथेसिस मॉडल, दैट इज एनालिसिस में आपको बता दिया फर्स्ट 4 फेज, सिंथेसिस आपकी लास्ट की 2 फेज, टोटल 6 फेज होता है आपके कंपाइलर में. इन दी एनालिसिस सिंथेसिस मॉडल ऑफ अ कंपाइलर, द फ्रंट एंड क्या हो गया आपका? फ्रंट एंड हो गया आपका एनालिसिस फेज. The front end of a compiler translates a source program into an independent intermediate code, and then the back end हो गया आपका synthesis phase. Back end of the compiler uses this intermediate code to generate the target code, which can be understood by the machine. So basically analysis जो phase है, analysis phase, that is top के जो 4 phase हैं, they are converting your source program into an intermediate code generation, intermediate code, and your back end, that is your synthesis phase, are converting that code, intermediate code, into the target code, that is the target language. ठीक है, सो दिस विल बी इजी फॉर टू अंडरस्टैंड. ये आपका फ्रंट एंड हो गया, दैट इज योर एनालिसिस फेज, एंड इट इज मशीन इंडिपेंडेंट. ओके, मतलब इसमें आप इसको आप किसी भी मशीन पे रन कर सकते हो, बट जो बैक एंड है आपका, दैट इज योर सिंथेसिस फेज, दैट इज मशीन डिपेंडेंट. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ कि फ्रंट एंड आपका क्या हो गया? एनालिसिस फेज हो गया आपके चारों, पहले के 4 फेज, लेक्सिकल, सिंटेक्स, सिमेंटिक, इंटरमीडिएट कोड, और फिर कोड ऑप्टिमाइजेशन, टारगेट कोड जनरेशन आपके क्या हो गए? बैक एंड. ठीक है, नाउ वील सी हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द इंटरमीडिएट कोड. So basically we have few notations, like first is your postfix notation. So postfix notation, I hope everybody knows कि अगर if I have this type of format a plus b, so its postfix will be a b plus, right? What we are doing, we are moving this operand, we're moving this operator afterwards, मतलब इस ऑपरेटर को आप बाद में लगा रहे हो, पीछे की तरफ. पोस्ट मतलब आप इसको पीछे फिक्स कर रहे हो. पोस्ट मीन्स पीछे, एंड फिक्स मीन्स फिक्सिंग समथिंग, so fixing something backwards. So postfix notation is a linear representation of a syntax tree. In the postfix notation, any expression can be written unambiguously without parenthesis. Very important, जब भी आप postfix notation लिखते हो, you will never use parenthesis. भले ही आपके infix जो आपका expression है, मतलब अगर if this is of this type, if I write it like this, suppose I am writing it like ये आपका ऐसे है, ठीक है, तब भी आपका पोस्टफिक्स जो है वो यही आएगा. यू विल नॉट इंक्लूड पैरेंथेसिस इनटू दिस पोस्टफिक्स. The ordinary, that is infix way of writing the sum of x plus y is with the operator in the middle. मतलब अगर हम कोई भी operator लें, that is x plus, let's say this is plus y, but in the postfix notation we place the operator at the right end. मतलब आपका जो operator है वो right end पे shift हो गया है, जो operator है वो right end पे shift हो गया. ठीक है, सो इन पोस्टफिक्स ऑपरेटर नोटेशन, द ऑपरेटर फॉलोज द ऑपरेंड. सो यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा बता दूं, कुछ लोगों को हो सकता है देयर माइट हैव समथिंग कंफ्यूजन. ऑपरेटर इज योर प्लस, योर माइनस, योर डिवाइड, एंड ऑपरेंड आर योर ए, बी एंड ऑल. ठीक है, सो अगर मेरे पास ये एक्सप्रेशन है a प्लस बी स्टार c प्लस d,
So how you will convert this into postfix? करो उसको. I'm giving you a few 1 minute. I'm giving you. Convert करो इसको everyone. Sorry. So what we'll do first, we'll first take this a plus b. ठीक है, बिकॉज अगर हम बेसिक बॉड मास फॉलो करें, बॉड मास रूल आप सबने पढ़ा होगा, आई होप यू ऑल रिमेम्बर दिस. सबसे पहले वी सॉल्व ब्रैकेट. दिस इज योर ब्रैकेट. दिस इज ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. So first of all we have bracket. So first we'll solve this. That is a plus b. And we all know that in postfix notation we do not take parenthesis. So it will be a b प्लस. ठीक है, ये आपका यहां आ जाएगा, राइट. दिस दिस बेसिकली जो आपका ये सिंबल है, दिस इज समथिंग लाइक दिस. तो ये आपका शिफ्ट होके यहां आएगा, राइट. सो दिस विल बी ए बी प्लस, देन विल बी सी डी प्लस, एंड देन यू विल हैव दिस स्टार. सो आई होप यू आर गेटिंग दिस. मतलब इसको ऐसे करो, अगर मैं, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस, बट स्टिल आई टेल यू. This is something like this: a plus b star c plus d. ठीक है. So what we can do is कि let's suppose let capital A is equal to a plus b. ठीक है. So and capital B is equal to c plus d. So this will be a star b. ठीक है. सबसे पहले what we will do, we'll write the postfix of this expression. What will be the postfix of this? This postfix will be a b star. Yes or no? ठीक है. Now what we will do, now we'll try to find the postfix of these two, and we know that parentheses are not included in postfix. So इसका postfix क्या हो गया? a b plus, and इसका postfix क्या हो गया? C D plus. Now what we'll do, now we'll substitute these values over here. So what is the postfix of this? A B plus, then B is C D plus, and then we have this star. So this is how we will get the postfix. So this you have to understand कि ये जो आपका star है, it will come over here because it is between these two. अगर आप इसको यहां लगा दोगे, इफ यू विल कीप इट ओवर हेड, विल बी ए बी प्लस सी स्टार डी प्लस. ऐसे करोगे तो इसका मतलब ये है कि ये दिस इज समवॉट लाइक दिस. ये आपका जो है इसका ये इनफिक्स ये होगा. ठीक है. सो इसीलिए ये जो आपका स्टार आएगा, इट विल कम एट द एंड. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट. क्लियर? ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी हैव पार्स ट्री एंड सिंटेक्स ट्री. सो ये मैं आपको एक न्यूमेरिक एक क्वेश्चन देके कर देती हूँ. अगर आप कर पाओ, कर लोगे वैसे तो आप लोग, बिकॉज पास्ट ही है ये. लेट्स सपोज दैट वी हैव x इक्वल टू a plus b multiply by c divided by a minus b multiply by c. ठीक है. अब ये आपका एक वो है. सबसे पहले तो आप लोग इसका पोस्टफिक्स बताओ. What will be the postfix of this expression? ये x इक्वल टू भी इसी में इंक्लूड होगा. ठीक है. चलो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ. इट विल बी इजी फॉर यू टू डू इट. x इक्वल टू a
प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी डिवाइडेड बाय, और डिवाइड का जो सिंबल वहां लिया है वही लेते हैं, y2 डिवाइडेड बाय a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी। ठीक है, ये है आपका। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू पोस्ट फिक्स। दिस इज इनफिक्स, ये आपका इनफिक्स है। आई होप यू ऑल नो दिस इज इनफिक्स। यू हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। ये वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। दीस क्वेश्चंस आर आल्सो आस्क्ड इन एग्जाम, सो इसीलिए आई एम फोकसिंग अ लिटिल बिट मोर कि आप थोड़ा सा इस पे ज्यादा फोकस करके करो इसे। ट्राई इट। So again you will write it as ax equal to a divide by b. This is a, this is b. ठीक है, now if I have to convert this into postfix, first I write this one. So x equal to a b divide, but again this is your infix. अगर आप ये वाला पार्ट देखो अपना, ये वाला x equal to a b, this is infix, so I have to again convert this into postfix because, so ये हो जाएगा x a b divide equal, इस वाले स्टेप को you cannot write x a equal b divide. I hope you all know why, because it is not something like x equal to a divide by b. अगर आप ऐसे लिखोगे इसे तो इसका मतलब ये आएगा, एंड आर एक्सप्रेशन इज x इज इक्वल टू ये पूरे का। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। नाउ वी विल डिवाइड, वी विल चेंज दिस, दिस विल बी a b प्लस c स्टार। ये यहां आ गया राइट में और ये यहां आ गया राइट में। सिमिलरली a b माइनस c स्टार। आई थिंक यू आर नॉट होपिंग ना कि ये भी बाहर आएगा और ये भी बाहर आएगा, बिकॉज ये दोनों इन्हीं एक ही पैरेंथेसिस के अंदर है। ओके, सो योर फाइनल एक्सप्रेशन विल बी समवॉट लाइक x, कैपिटल A हो गया आपका a b प्लस c स्टार, कैपिटल B हो गया आपका a b माइनस c स्टार, फिर डिवाइड और फिर इक्वल टू। यस, ऐसे ही होगा। एक तरीका और है, वी कैन यूज स्टैक्स नाउ, है ना। स्टैक से सॉल्व करके देखते हैं कैसे होता है, क्या पता ये राइट वे है या नहीं, ये हमें पता लग जाएगा। व्हाट वील डू, वील यूज स्टैक मेथड, है ना। वील राइट x, ठीक है, x आ गया, वील राइट इक्वल टू, ओके, देन वी विल ऐड दिस पैरेंथेसिस नाउ, ठीक है, देन वी हैव a, ओके, देन वील राइट प्लस, ओके, देन वील राइट b, ओके, देन वी हैव स्टार। अब लो प्रायोरिटी के ऊपर हाई प्रायोरिटी आ सकती है ना। यस और नो, सोच के देखो। लो प्रायोरिटी ऑपरेटर के ऊपर हाई प्रायोरिटी ऑपरेटर आ सकता है। एक बार ट्राई करो इसको, इससे बताओ सही आंसर आ रहा है या अलग आंसर आ रहा है।
अच्छा, अब नाउ क्या हुआ है, लेट मी टेल यू, लेट मी रेज दिस पार्ट पहले, ठीक है। अब यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है। क्या गड़बड़ हुई है, आई टेल यू व्हाट हैपेंड। यहाँ पे अगर हम इसको ओपन करेंगे, दिस विल बी a प्लस बी, दिस थिंग मल्टीप्लाई बाय c। वाई आई टेल यू, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो प्लस है ये भी इसी ब्रेसेस के अंदर है ना, दिस इज ऑल्सो इनसाइड दिस ब्रेसेस, और यहाँ पे भी सेम चीज है। सो इसीलिए आई सजेस्ट एवरीवन कि ऐसा कंफ्यूजन आपको ना हो, ठीक है, ये कंफ्यूजन आपको फेस ना करना पड़े। द बेस्ट थिंग इज यूज व्हाट यू कैन यूज स्टैक मेथड फॉर कन्वर्टिंग इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, ठीक है। आई एक्सप्लेन दिस टू यू। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स के लिए द बेस्ट मेथड यू कैन यूज इज, क्योंकि सी उस वाले केस में मुझसे ही गड़बड़ हो गई है ना, तो एंड अगर मुझसे गड़बड़ हो रही है एंड दैट टू जब मेरे पास इतना सारा टाइम है, एंड देन आई एम गेटिंग कंफ्यूज, और आई एम जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट कि एक चीज स्लिप हो गई और गड़बड़ हो गया पूरा आंसर। इससे बेटर है कि आप एक, क्योंकि एग्जाम में आपके पास लिमिटेड टाइम होगा, इट विल बी बेस्ट कि आप एक स्टैक लेके सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे स्टैक लेके, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी एक स्टैक हमने क्रिएट की यहाँ पे, ठीक है। what we will do, we will start reading the question, that is expression, so it is x, so what we will write x over here, then we have equal to, so I'll enter this operator, जितने भी operators हैं they will go inside the stack, ठीक है। so equal to आपका stack में enter कर गया। now you have parenthesis, so parenthesis आपने enter कर दिया। you have a, so you will write a over here, you have plus, so you will write plus over here, you have b written over here, you have star, so star is basically what, star is multiplication, and star is having high priority, ठीक है, हाई प्रायोरिटी ओवर प्लस, तो आई कैन राइट स्टार अबव प्लस, ठीक है। अगर ऐसा होता कि स्टार होता और प्लस होता, देन फर्स्ट आई वुड हैव पॉप्ड स्टार एंड देन आई वुड हैव रिटन प्लस। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद स्टार के बाद वी हैव सी, सो आई राइट सी। नाउ आई हैव क्लोज पैरेंथेसिस, जैसे ही क्लोज पैरेंथेसिस आया आई विल पॉप दीज टू, सो आई विल पॉप स्टार, आई विल पॉप प्लस, तो अब ये हो गया। इसके बाद ये आपका एक स्टैक ओवर हो गया। इसके बाद यू हैव डिवाइड, सो डिवाइड आपने यहाँ पे लिख दिया, करेक्ट। अगेन यू हैव पैरेंथेसिस, देन यू राइट a, now you have minus, then you have b, then you have star, then you have c, now you have parenthesis close, so first you will pop star, then you will pop minus. Now you have completed, now you will start popping this, now you will pop this divide, that is this, and now you will pop this equal to, ठीक है। सो ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। एंड आई ऑलवेज सजेस्ट कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, सो इट्स के लिए बेटर है कि यूज स्टैक फॉर कन्वर्टिंग इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, इन ऑर्डर कि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आई सजेस्ट टू यूज, ठीक है। एक एग्जाम्पल और करके देखते हैं, क्वेश्चन और करके देखते हैं, जैसे कि कंफ्यूजन अगर कोई है तो वो दूर हो जाएगा। लेट्स से दैट आई हैव एन एक्सप्रेशन दैट इज a plus b star c minus d minus e स्टार f प्लस g, ठीक है। बहुत सारे पैरेंथेसिस हैं तो कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, बट स्टिल व्हाट वी विल डू, वी गो विद द स्टैक मेथड ओनली, द बेस्ट मेथड दैट वी हैव फॉर अस, दैट इज योर स्टैक। सो वील से वी एनकाउंटर parenthesis, then we have a, then we wrote plus, then we have b, then our parenthesis close, so जैसी parenthesis close होगा मतलब you have to pop all things, everything that is inside this parenthesis। इसके बाद आया star, we write star over here, इसके बाद आया c, इसके बाद आया minus। now minus is having a low priority, ठीक है, माइनस जो है वो लो प्रायोरिटी है और स्टार जो है वो हाई प्रायोरिटी है। So when I have this type of thing कि a low priority
operator is coming above a high priority, so before entering that low priority, first I will pop this high priority. तो ये pop हो जाएगा पहले, and now my low priority will enter. Then I have again parenthesis, so it will be D. Now parenthesis में minus है, so it will be E. Parenthesis close, minus will be pop. Now I have star, so star will come. Yes, अब star आ जाएगा because star is of high priority, so high priority can come over low priority. Then I have parenthesis, so it will be F. Then I have plus under this parenthesis, so G. Now parenthesis close, so this will come over here. Now my expression is over. I'll start popping the remaining concept. So this will be this. तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा. ठीक है. So I'll suggest you all, whenever you have a question of converting from infix to postfix, ठीक है, every time go for star. It will be the easiest method to solve. क्योंकि जब मेरे से एक मिस्टेक हो गई इन दिस एनवायरमेंट जहां पे आई हैव नो बाउंड ऑफ टाइम, तो उसके जब आप एग्जाम में करोगे सो देयर विल बी प्रेशर, देयर विल बी कि जल्दी करना है, सो दैट प्रेशर विल डेफिनेटली गिव यू रॉन्ग आंसर. अगर आप वेल वर्स्ड हो उस मेथड से तो आप उससे भी कर सकते हो, बट आई प्रेफर पर्सनली कि आप स्टैक मेथड को यूज करो. ठीक है. ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन था. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू दी सिंटेक्स ट्री. कन्वर्ट करो इसे, पास्ट ट्री या सिंटेक्स ट्री में कन्वर्ट करो. तो कैसे करोगे इसे आप लोग? सबसे इजी है. सबसे पहले वी हैव टू डिसाइड द रूट नोड. ठीक है. रूट नोड का बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि एक उसका लेफ्ट चाइल्ड होगा, राइट, एक उसका राइट चाइल्ड होगा. व्हेन यू सी दिस एक्सप्रेशन यू कैन इजीली से कि पहली रूट नोड आपका ये इक्वल टू होगा. व्हाई? बिकॉज दिस इक्वल टू इज डिवाइडिंग माय एक्सप्रेशन इनटू टू पार्ट्स. एक लेफ्ट पार्ट, एक राइट पार्ट. यस और नो? तो लेफ्ट ये हो गया इक्वल टू का लेफ्ट चाइल्ड हो गया x. अब लेट्स टॉक अबाउट राइट चाइल्ड. राइट चाइल्ड अब आपका ये पूरा है. दिस एंटायर पार्ट इज योर राइट चाइल्ड. लेकिन अब राइट चाइल्ड का रूट क्या होगा? वही जो लेफ्ट और राइट में इसको डिवाइड कर दे. दैट विल बी योर डिवीजन. Yes, so now I have A plus B multiplied by C as one part and A minus B multiplied by C as the another part. So अब what I can do is, अब अगर आप ये सोचो कि हम ये कर सकते हैं कि ये लें, यहाँ पे हम ऐसे करके ये कर दें और यहाँ पे हम A कर दें और यहाँ पे हम B कर दें. ठीक है. आप अगर ऐसे सोच रहे हो तो सबसे पहले तो ये बताओ, जब हम इसको पोस्ट फिक्स में लिखेंगे, है ना, जब हम इसका पोस्ट फिक्स लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे पोस्ट फिक्स? ठीक है. सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. ये एक तरीका आपका ये हो गया. एक तरीका आपका हो गया कि यू कैन मेक दिस प्लस एज द रूट नोड. यहाँ पे a आ गया, यहाँ पे कैन राइट इट एज मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे आपका b आ गया और यहाँ पे आपका c आ गया. ठीक है. मतलब ऑब्वियसली पास्ट ट्री ड्रॉ करने के तो वेरियस वेज होते हैं, है ना. पास्ट ट्री आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई फिक्स पास्ट ट्री नहीं है. बट जो नोटेशन आप लेफ्ट साइड फॉलो कर रहे हो वही सेम नोटेशन आपको राइट साइड पे भी फॉलो करनी है, वरना आपकी
that pass tree will create a problem. So whatever notation you're using at the right hand side, the same notation you have to use at the left hand side as well. तो ये आपका पास ट्री बन जाएगा फॉर द गिवन एक्सप्रेशन. तो पास ट्री इज वेरी इजी टू जनरेट. पास ट्री में कुछ भी नहीं है, सिंपली यू हैव टू डिसाइड ऑन कि व्हाट हैज टू बी द लेफ्ट पार्ट एंड व्हाट हैज टू बी द राइट हैंड साइड. ठीक है. सो ये आपका हो गया पोस्ट फिक्स और ये आपका हो गया पास ट्री. नेक्स्ट आता है आपका थ्री एड्रेस कोड. यू ऑल मस्ट हैव हर्ड दिस थ्री एड्रेस कोड. सबने सुना होगा थ्री एड्रेस कोड है ना. इसमें कुछ नया मतलब पता ना हो अलग बात है, बट यू ऑल मस्ट हैव हर्ड दिस टर्म डेफिनेटली. सो in three address code, the given expression is broken down into several separate instructions. अगर आपका मान लो एक एक्सप्रेशन यही दिया हुआ है, लेट्स से ये आपका एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये आपका वन एक्सप्रेशन है. So when we are dealing with three address code, what we will do, we will divide this into इंस्ट्रक्शंस, सेपरेट इंस्ट्रक्शंस. तो एक एक्सप्रेशन को आप सेवरल सेपरेट इंस्ट्रक्शंस में ब्रेक करोगे. These instructions can easily be translated into assembly language, but the condition with three address code is what? Each three address code instruction has at most three operands. ऑपरेंड्स क्या बताए थे आपको? A, B, C, D, X, Y, Z. So इसका मतलब कि whenever I am using three address code, my instruction, each instruction should have at most, मतलब ज्यादा से ज्यादा, you can have 0 operand, you can have 1 operand, you can have 2 operand, you can have 3 operand. You can only have these options. अगर किसी कोई आपका एक्सप्रेशन ऐसा है t is equal to x plus y plus z, so you see 1 2 3 4, I have 4 operands over here, so this will not be a 3 address code. ऑपरेंड्स कितने होने चाहिए? एट मोस्ट 3, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 ऑपरेंड्स ही आप ले सकते हो इन 3 एड्रेस कोड. ठीक है. सो अगर आपका ये आपका सेम आ गया, t इक्वल टू मैं बताया था, सो d इक्वल टू a स्टार b प्लस c. अब इसको हम if you try to understand this, what is it? b equal to a star b plus c, ये आपका एक्सप्रेशन है. now if you have to convert this into three address code, three address code मतलब how many operands you can have? You can have only 3 operands, मतलब at most 3 operands. ठीक है. तो सबसे पहले what we will do, we will take the basic one. ठीक है. let's say we wrote it as t1, t1 equal to a multiply by b. कितने ऑपरेंड्स हो गए? 3 ऑपरेंड्स, t1 a and b. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव t2, t2 इक्वल टू, अब a मल्टीप्लाई b है, इसको हमने क्या लिख दिया? t1, सो इट विल बी t1 प्लस c. आई होप यू गेटिंग इट. अगेन वी हैव हाउ मेनी ऑपरेंड्स? 3 ऑपरेंड्स, t2 t1 and c. सो यहाँ पे हमने व्हाट वी डिड, we use this sub expression as t1 and t1 पे हमने फिर इसको यूज कर लिया. and then last will be d equal to t2. so how many operands we have? 2 operands, so we should have at most 3 operands, right? so at most 3 का मतलब है 0 1 या 2 या 3. so if you see t1 equal to a multiply b, that is ये. फिर इसके बाद हमने क्या? t2 equal to t1 plus c and then d equal to t2. so ये आपका हो गया 3 एड्रेस कोड. ठीक है. तो अगर मैं आपको एक एक्सप्रेशन दूं, लेट्स से दैट द एक्सप्रेशन इज x इक्वल टू, सेम वही है, a प्लस b मल्टीप्लाई बाय c डिवाइडेड बाय a माइनस b मल्टीप्लाई बाय c, and you have to convert this into 3 address code. कैसे करोगे आप? सो आई होप यू ऑल नो दैट कि जो आपका t1 t2 t3 है, ये आपके टेम्पररी वेरिएबल्स हो जाएंगे, है ना? बिकॉज जो मेन वेरिएबल्स हैं आपके वो हो गए x a b c, जो ऑलरेडी आपके एक्सप्रेशन में गिवन है. बट जो वेरिएबल्स आप खुद से यूज कर रहे हो,
यूज कर रहे हो ना खुद से, वो आपके टेम्पररी वेरिएबल्स हो जाएंगे। सो क्या करोगे इसमें? सबसे पहले इसमें आप देखो कि सबसे बेसिक एक्सप्रेशन क्या है आपका। यहाँ पे आ रहा है सबसे पहले, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट इट एज T1 इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाय C, T2 इक्वल टू A प्लस T1। ठीक है, अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये रिपीट हो रहा है, बट अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, सो वील राइट इट एज T3 इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाय C। आप इसको अगेन यूज कर सकते हो, बट फॉर आवर कन्वीनियंस, जब हमसे अभी हमसे वो कुछ पूछा नहीं उन्होंने, वी सिंपली हैव टू कन्वर्ट, सो वील जस्ट रीयूज इट अगेन। ठीक है, देन T4 विल बी A माइनस T3। यस, तो अब ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया आपका T2, एंड ये पूरा एक्सप्रेशन हो गया आपका क्या, T4। सो लेट्स से T5 इज इक्वल टू T2 डिवाइड बाय T4, so x equal to T5. So this is how you will do it. I hope you have understood this point, ki how you will convert, and you can see that all the instructions are three address, at most three operands, T1 BC, T2 AT1, T3 BC, T4 AT3, T5 T2, T4 X T5. So all are in your three address code. Yes, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको, इसका आंसर बताना है आप लोगों को। सो द एक्सप्रेशन दैट इज गिवन टू यू इज A इक्वल टू माइनस C मल्टीप्लाई बाय B प्लस minus C multiply by D. So you have to tell number of temporary variables. यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम का कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ टेम्पररी वेरिएबल्स। ठीक है, अगर मिनिमम पूछेंगे तो केस अलग हो जाएगा, अभी यहाँ पे वो आपसे ऐसा कुछ पूछ नहीं रहे। सो सिंपल वो पूछ रहे हैं नंबर ऑफ टेम्पररी वेरिएबल्स, पर इतना ही बताना है यहाँ पे। ट्राई करो इसको। What we'll do over here, सबसे पहले we will write T1 equal to minus C, right? बिकॉज C की वैल्यू आपके पास स्टोर होगी, माइनस C की वैल्यू स्टोर नहीं होगी। अगर C की वैल्यू -5 है तो -C हो जाएगा 5, सो वी हैव टू स्टोर दिस वैल्यू समवेयर। ठीक है, देन T2 विल बी T1 मल्टीप्लाई बाय B, then again we'll take T3 equal to minus C, T4 will be T3 multiply by D, then we will have T5 equal to T2 plus T4, and then A equal to T5. So temporary variables कितने हो गए, 5 temporary variables। अगर वो मिनिमम पूछते, so what we would have done, we could have used this T1 again over here, अगर वो हमसे ऐसा पूछते, बट मिनिमम की नहीं पूछी, इसलिए द आंसर विल बी 5 temporary variables। ठीक है, next let's see what next we have now। the three address code can be represented in three forms। ठीक है, अभी तो ये हमारा एक तरीका हो गया कि how we can solve this expression to find the three address code, but we can write these three address code in three forms। We can write it in form quadruple, triples and indirect triples। So what is it, let's see first one by one। First we have quadruple। so quadruples have 4 fields। ठीक है, 3 एड्रेस कोड को जनरेट करने के लिए हमारे पास 4 फील्ड हैं। व्हाट आर द 4 फील्ड्स? सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपका बेसिक जो स्ट्रक्चर है थ्री एड्रेस कोड का, वो चेंज नहीं होना चाहिए। क्या?
सोर्स कोड, पहला सोर्स कोड, सेकेंड सोर्स कोड, सोर्स ऑपरेंड, फिर नेम ऑफ द ऑपरेटर और रिजल्ट। अब जैसे कैसे मैं आपको इसका एक्सप्लेन करती हूँ, इसका एग्जांपल देके। सेम एग्जांपल लेते हैं हम। लेट्स से एग्जांपल है हमारा अगेन x इक्वल टू a प्लस b मल्टीप्लाई बाय c डिवाइडेड बाय a माइनस b प्लस c। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ वी हैव टू राइट इट इनटू क्वाड्रपल फॉर्म। सो क्वाड्रपल में क्या होगा, क्वाड्रपल में क्या होगा, जो हमारा जो भी स्ट्रक्चर होगा उसकी चार, उसमें चार आपके फॉर्म्स होंगे, चार फॉर्म का होगा वो। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आ गया आपका ऑपरेटर। ठीक है, अगर हम टेबुलर फॉर्म की बात करें, ऑपरेटर, फिर आ गया आपका फर्स्ट ऑपरेंड दैट इज ऑपरेंड 1, देन सेकंड हो गया आपका ऑपरेंड 2, एंड थर्ड हो गया आपका वो रिजल्ट, मतलब कि जो भी टेम्पररी वेरिएबल है जिसमें भी आप इसको स्टोर कर रहे हो। ठीक है, सो अगर हम देखें वेयर वी हैव सॉल्व दिस एक्स प्लस ए प्लस बी, ये रहा। ठीक है, x इक्वल टू ये था। सबसे पहला क्या है हमारा, सबसे पहला अगर मैं इसे आई हैव टू राइट इट एज, तो t1 इक्वल टू b मल्टीप्लाई c है। ठीक है, सो फर्स्ट इज t1 इक्वल टू b मल्टीप्लाई c। ठीक है, t1 हो गया, ये आपका t1, देन आई राइट इट ओवर हियर t2 इक्वल टू a प्लस t1, t3 अगेन b मल्टीप्लाई c, t4 a माइनस t3। ठीक है, t5 इज t2 डिवाइड t4 एंड x इक्वल टू t5। ये आपका 3 एड्रेस कोड है, करेक्ट, दिस इज योर 3 एड्रेस कोड। यू हैव टू राइट दिस 3 एड्रेस कोड इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रपल। तो कैसे लिखोगे इसे, सबसे पहले व्हाट इज द ऑपरेटर फॉर दिस फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑपरेटर इज मल्टीप्लिकेशन, ऑपरेंड 1 is b, ऑपरेंड 2 is c, रिजल्ट स्टोर्ड इन t1। तो ये आपका पहला इंस्ट्रक्शन हो गया। देन ऑपरेटर again is plus, then we have operand 1 as a, operand 2 as t1, रिजल्ट आपका किस में स्टोर हो गया, t2 में स्टोर हो गया। then we have multiply as the operator, operand is 1 is b, operand 2 is c and result stored in t3, तो t3 में रिजल्ट स्टोर हो गया। then operator is minus, operand 1 is a, operand 2 is t3 and result is stored in t4। देन ऑपरेटर इज डिवाइड, ये आपका डिवाइड हो गया। ठीक है, ऑपरेटर 1, ऑपरेंड 1 इज t2, ऑपरेंड 2 इज t4 एंड रिजल्ट आपका स्टोर हो गया t5 में। लास्ट में योर ऑपरेटर इज इक्वल टू, योर फर्स्ट ऑपरेंड इज t5, यू डोंट हैव एनी अदर ऑपरेंड 2, सो यहाँ पे आपका रिजल्ट आ गया x। सो दिस इज हाउ यू विल स्टोर योर रिजल्ट इन क्वाड्रपल। ठीक है, क्वाड्रपल के फॉर्म में आप ऐसे स्टोर करोगे अपने रिजल्ट को। सो बेसिकली आपका कुछ भी चेंज नहीं होगा, आपका इंस्ट्रक्शन आपका कुछ चेंज नहीं होगा, योर वे ऑफ राइटिंग योर 3 एड्रेस कोड विल नॉट चेंज, द वे ऑफ स्टोरिंग or way of representing your 3 address code will change. So quadruple will have 4 fields, that is operator, first operand, second operand and the result. So result are basically the variables where you are storing the expression, the respective operations. ठीक है, सो ये हो गया आपका क्वाड्रपल। नेक्स्ट वी हैव ट्रिपल्स। सो ट्रिपल्स हैव 3 fields. What are 3 fields? Name of operator, first source operand and second source operand. रिजल्ट नहीं है यहाँ पे। In triples, results of respective sub expressions are denoted by the position of the expression. यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वाड्रपल का केस देखो अगर आप, इन केस ऑफ क्वाड्रपल इफ यू सी वी आर यूजिंग द रिजल्ट्स। ठीक है, बट इन केस ऑफ ट्रिपल्स, ट्रिपल्स के केस में ये रिजल्ट वाला कॉलम नहीं रहेगा, वी विल बी यूजिंग द पोजीशन ऑफ द एक्सप्रेशन। कैसे, सेम एग्जांपल है। ठीक है, लेट्स टेक सेम एग्जांपल, दैट इज x इक्वल टू a प्लस b मल्टीप्लाई बाय c divide by a minus b multiply by c. ठीक है, now we are using the method that is
ट्रिपल्स. सो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, अगेन सेम थिंग. क्या करोगे आप लोग, पहले सबसे पहले ये आपका आ गया ऑपरेटर, ये आ गया ऑपरेंड 1, ये आ गया ऑपरेंड 2. ठीक है. नाउ फर्स्ट व्हाट वी हैव, फर्स्ट वील टेक दिस वन b मल्टीप्लाई c. सो ऑपरेटर हो गया मल्टीप्लाई, ऑपरेंड हो गया b और ऑपरेंड 2 हो गया c. करेक्ट, डन. देन वी विल टेक दिस वन, दैट इज ऑपरेटर इज प्लस, ऑपरेंड 1 इज a. अब ये जो आपने स्टोर किया है ये कौन से पोजीशन पे स्टोर किया है, लेट्स से दैट पोजीशन नंबर और सीरियल नंबर हमने इसका ले लिया 1. ठीक है. यहाँ पे हम जो जो हम रेफर कर रहे हैं वो रेफर कर रहे हैं इनकी पोजीशन. सो लेट्स से दैट द पोजीशन ऑफ दिस इज 1. सो दिस आई एम टॉकिंग अबाउट इज 1. यहाँ पे मैं ऑपरेंड 2 मेरा हो जाएगा 1, मतलब 1 का मतलब कि आई रेफर टू दिस पोजीशन. सो द आउटपुट ऑफ दिस आई जस्ट रीजन इट, जिसका आउटपुट आएगा वो यहाँ स्टोर हो जाएगा. सो ये हो गया आपका 1. सो ये कौन सी पोजीशन हो गई, दिस इज योर पोजीशन नंबर 2. ये आपकी पोजीशन नंबर हो गई 2. नेक्स्ट वी हैव व्हाट, नेक्स्ट वी हैव अगेन, अब यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, लेट्स टेक इट एज प्लस. ठीक है. सो हम थोड़ा सा उसको चेंज कर देते हैं प्लस. सो यहाँ पे अगेन वील हैव प्लस, देन वील हैव b एंड देन वील हैव c. सो दिस विल बी योर प्लेस नंबर, पोजीशन नंबर 3. देन वी हैव a माइनस थिंग. So again we'll have minus, then we'll have a. Now we have to use this, so that is your position number 3. So ये आपका कौन सा position number का हो गया, this is your position number 4. Now we have to divide. We have to divide what? We have to divide the expression at position number 2 and we have to divide the expression at position number 4. और ये कौन सी position पे store हो गया, this will be stored at position number 5. Now we will equal it. So equal it will be this first operand is x and the resultant operand will be 5. और ये कौन सी पोजीशन हो गई, ये पोजीशन हो गई आपकी 6. यहाँ पे अगर आप देखो क्वाड्रपल के केस में, तो क्वाड्रपल के केस में ऑपरेंड 2 was null, this was null because the result was stored in x. बट अगर ट्रिपल के केस में देखो तो ऑपरेंड 1 is not null. Operand 1 is also having a value and operand 2 is also having a value, that is the position of certain expression, and then we have named it as position number 6. So ये difference है आपका triples और quadruple के बीच में. I hope this is clear to everyone. Quadruple और triple का concept समझ में आ गया होगा. ठीक है. Next we have another term, that is your indirect triple. So this representation makes use of pointer to the listing of all the references to computations which is made separately and stored. So यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे we are referring to the position of the expression. But in this case, in indirect triples, we will be referring to the pointer. तो अगर आप देखो यहाँ पे, first let's look over here. This is the expression a equal to b multiply minus c plus b multiply minus c. ठीक है. सबसे पहले हमने लिखा ऑपरेटर इज माइनस, दैट इज यूनरी माइनस. यूनरी माइनस मतलब ये. ठीक है. यू माइनस, आई राइट इट ओवर कि कंफ्यूजन ना हो, इट इज यूनरी माइनस. वैसे तो माइनस इज बाइनरी ऑपरेशन है ना, बट यूनरी माइनस मतलब कि इफ आई हैव माइनस सी, दिस मींस दैट सी की जो वेरिएबल है उसको नेगेटिव कर दो. ठीक है. ये आपका, तो इसको इन्होंने नंबर दिया है 14. ठीक है. रैंडम नंबर्स दिए इन्होंने, रैंडम नंबर्स दिए 14. फिर माइनस सी को कर दिया, उसके बाद व्हाट दे डिड, देन दे डिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइनस सी, दैट इज 14. मतलब ये आपका बेसिकली क्या है, ये है आपका ट्रिपल्स का मेथड है ना, ये आपका ट्रिपल्स है. व्हेन यू आर यूजिंग दिस इन ऑर्डर टू रिलेट टू दी पॉइंटर्स, दैट इज 0 1 2 3 4 5, ये आपका इनडायरेक्ट ट्रिपल्स हो जाएगा. मतलब ट्रिपल्स को आप यूज कर रहे हो एंड देन यू आर रेफरिंग इट somewhere with the help of pointers, that is your indirect triples. ठीक है. आपने कुछ नहीं किया, सबसे पहले what you did, you use triples. ठीक है. ट्रिपल्स मेथड को यूज करके आपने इनको you just represented with the help of triples, और उसके बाद आपने इसको स्टेटमेंट को पॉइंटर्स के थ्रू रेफर करवा दिया. ये आपने इसमें बेसिकली किया है. ठीक है. सो इन ये आपका क्वेश्चन आया है, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन 2019.
2019 में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज इट, व्हाट दे आर सेइंग, on translating the expression given below into quadruple representation how many operations are required. ट्राई करो इसे, क्वाड्रपल में इसको स्टोर करना है, ठीक है, आपको बताना है कि कितने एक्सप्रेशंस लगेंगे, हाउ मेनी एक्सप्रेशंस यू विल हैव टू फेस व्हेन यू विल कन्वर्ट दिस गिवन ऑपरेशन इनटू क्वाड्रपल. सो क्वाड्रपल में आई होप यू ऑल नो क्या क्या होता है. ऑपरेटर होता है, राइट, ऑपरेंड 1 होता है, ऑपरेंड 2 होता है, एंड रिजल्ट होता है. यस, सो अब इसको सॉल्व करो. सबसे पहले we'll solve this one, ठीक है. So what we'll get, we will get let's say that ये आपका है मल्टीप्लाई, this is operand 1 I, operand 2 J, and this is stored in T1, ठीक है. So this is your T1. Then we'll have E plus F, so we have plus, we will have E, we will have F, and this will be stored in, let's say, T2. So ये हो गया T2. Then we have this A multiply B plus C. So what we can do, फर्स्ट हम कुछ भी पहले कर सकते हैं, या तो आप ये पहले कर लो या ये पहले कर लो, जो आपको प्रेफरेबल हो. सो वी कैन राइट मल्टीप्लाई, देन वी हैव A एंड B, लेट्स से दिस इज T3, ठीक है. सो दिस इज योर T3, देन वी विल हैव प्लस, देन वी विल हैव T3 एंड C, एंड दैट विल बी स्टोर्ड इन T4, ठीक है. Now what we will do, we will have plus, we will add T1 and we will add T2, let's say it will be T5. Then we will have last में what, we will have last में multiply, we will have T5 multiplied by T4, that will be T6. So in total we have 1 2 3 4 5 6, we have 6 operations, right. So the correct answer is option number B, that is 6. तो ये question आपका आया है 2019 में. So I hope you have understood the concept of quadruple, right. ठीक है, एक क्वेश्चन में दे रही हूं, इसको ट्राई करो. A plus B divide by 9 plus C minus D multiply by 4 plus E. इसको 3 एड्रेस कोड भी लिखो.
सो इसको कैसे करोगे आप लोग? सबसे पहले व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई, क्योंकि यहाँ पे कोई पैरेंथेसिस है नहीं है ना, देयर इज नो पैरेंथेसिस ओवर हियर, एंड प्लस का और माइनस का हो सकता है, हाँ माइनस का आपका आंसर हो सकता है, प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती. सो व्हाट वी कैन डू इज फर्स्ट वी विल डू t1 इक्वल टू b डिवाइड बाय 9. ठीक है, सो योर एक्सप्रेशन बिकम्स a प्लस t1 प्लस c माइनस d मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस e. नेक्स्ट हम क्या करें, लेट्स सपोज कि नेक्स्ट हमने d मल्टीप्लाई 4 कर दिया. So now our expressions become a plus t1 plus c minus t2 plus e. ठीक है, now we have this plus and minus. So what we can do, we can start from here. So t3 will be a plus t1. Now we have t3 plus c minus t2 plus e. Then we have t4 equal to t3 plus c. ठीक है, तो अभी आपका हो गया t4 minus t2 plus e. Then let's say t5 equal to t4 minus t2. ठीक है, and t6 equal to t5 plus e. है ना? या फिर अगर हम बॉड मास का मेथड देखें, बॉड मास का रूल क्या होता है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सबसे पहले होता है ना. सो व्हाट वी कैन डू दैट इंस्टेड ऑफ दीज टू स्टेप्स, यहाँ पे t3 प्लस c करने के बाद अगर आपका ये बच रहा है दैट इज t4 माइनस t2 प्लस e, तो पहले आप एडिशन कर लो. सो हियर व्हाट यू कैन डू इज t5 equal to t2 plus e and t6 equal to t4 minus t5. दोनों ही मेथड आपके करेक्ट हैं, है ना. आपको 3 एड्रेस कोड लिखना है, दोनों ही मेथड से आप 3 एड्रेस कोड को ही फॉलो कर रहे हो, आपका 3 एड्रेस कोड गलत नहीं हो रहा है. ठीक है, हमने ब्रैकेट यहाँ पे है नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑफ यहाँ पे है नहीं. सबसे पहले डिवीजन सॉल्व कर लिया हमने करेक्ट, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, फिर हमने सारे एडिशंस कैरी आउट कर लिए, एंड लास्ट में वी हैव डिड द सब्ट्रैक्शन. सो आप ये भी कर सकते हो. ठीक है, सो दिस इज योर 3 एड्रेस कोड. अब नेक्स्ट आया आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन. सो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में कुछ नहीं है, बहुत इजी है, सिंपल सा कंसेप्ट जो हमें समझना है वो है आपका कोड इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में 3 एड्रेस कोड, रेस्ट एवरीथिंग इज वेरी इजी. ठीक है, अब कोड ऑप्टिमाइजेशन में कुछ टर्म्स एंड कुछ कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो दे आर लिटिल बिट टफ और लिटिल बिट कंफ्यूजिंग. सो आवर फोकस विल बी टू फोकस ऑन दीज टॉपिक्स. ठीक है, let's start by code optimization now. Let's see what is the first thing that we have. सबसे पहले तो आपको पता है कि कोड ऑप्टिमाइजेशन किस फेज में आता है, सिंथेसिस फेज में आता है, राइट. सो कोड ऑप्टिमाइजेशन इन द सिंथेसिस फेज इज अ प्रोग्राम ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक which tries to improve the intermediate code by making it consume few resources, that is CPU or memory, so that faster running machine code will result. मतलब क्या है यहाँ पे, जो आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन है इट इज अ सिंथेसिस फेज. ठीक है, इसका बेसिक वर्क ये रहता है कि आपका जो इंटरमीडिएट कोड जनरेट हुआ है, अभी इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के थ्रू आपने जो कोड जनरेट किया है या 3 एड्रेस कोड आपने जनरेट किया है, जो भी वो कम से कम रिसोर्सेज को कंज्यूम करे. रिसोर्सेज क्या हुए आपके, रिसोर्सेज कैन बी सीपीयू और मेमोरी, सो दैट योर मशीन योर कोड विल रन फास्ट. Compiler optimizing process should meet the following objectives. The optimization must be correct. मतलब सबसे पहली चीज कि अगर मेरा स्टेटमेंट है a plus b multiply by c and suppose somehow if I am optimizing this, और इसको ऑप्टिमाइज करके अगर मेरा स्टेटमेंट ये हो रहा है, so then that is wrong. So जो भी आप ऑप्टिमाइजेशन करो, whatever optimization you are performing, it should not change the actual meaning of the code. प्रोग्राम का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. Optimization should increase the speed and performance of the program.
compilation time must be kept reasonable, the optimization process should not delay the overall compiling process. ठीक है, ऐसा ना हो कि ऑप्टिमाइजेशन के चक्कर में आपका जो ओवरऑल कंपाइलेशन जो हो रहा है वो सफर कर रहा है. ठीक है, अब क्या क्या है इसमें. Types of code optimization. So basically we have two types of code optimization: machine independent optimization and machine dependent optimization. So what is machine independent optimization? This code optimization phase attempts to improve the intermediate code to get a better target code as the output. The part of intermediate code which is transformed here does not involve any CPU registers or absolute memory location. अब नाम से आपको समझ में आ रहा है मशीन इंडिपेंडेंट, मतलब व्हाट दे आर सेइंग इज कि whatever code you have generated or whatever code you are optimizing, it is not involving any of the CPU registers or memory locations. Because ऐसा क्या होगा, सपोज मशीन 1 है आपके पास, ठीक है, मशीन 1 में आपने कोड जनरेट किया. Now what happened is कि मशीन 1 में the code is using suppose registers R1 R2. ठीक है, अब मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब तो ये है कि R1 R2 होने नहीं चाहिए. बिकॉज अगर मशीन 1 में आई एम यूजिंग R1 R2, सो मशीन 2 में हो सकता है R1 R2 आर एलोकेटेड समवेयर एल्स. यस और नो, मतलब अगर मेरे पास एक मशीन 1 है, ठीक है, मशीन 1 में सपोज आई हैव टू रजिस्टर्स R1 R2 एंड आई हैव यूज्ड दोस टू रजिस्टर्स विद माय दिस इंटरमीडिएट कोड. Now what is happening is कि intermediate code में मैंने R1 R2 यूज किया है, but if I am running it on some another machine, हो सकता है वहां पे R1 R2 available ना हो. It will generate an error. It will not run. So machine independent says that कि whatever part of code you are transforming, that code should not have any CPU or memory reference. What is machine dependent? Machine dependent optimization is done after target code has been generated and when the code is transformed according to target machine architecture. मतलब कि machine dependent में जो आप code generate कर रहे हो वो with respect to a particular machine आप कर रहे हो. ठीक है, तो मशीन इंडिपेंडेंट में सीपीयू रेफरेंसेस, सीपीयू रजिस्टर्स, मेमोरी रेफरेंसेस नहीं होने चाहिए. बट मशीन डिपेंडेंट में आप जो टारगेट कोड जनरेट कर रहे हो, इट इज बेसिकली डिपेंडिंग, इट इज अप टू द आर्किटेक्चर, इट इज व्हाट यू कैन से, it is made with reference to the target machine. ठीक है, so machine dependent involves CPU registers and may have absolute memory references rather than relative references. So I hope ये point आपको समझ में आ गया हो कि machine dependent and machine independent में क्या difference है. ठीक है, अब we have certain ways of optimizing the code. क्या क्या ways हैं? Compile time evaluation, common sub expression elimination, स्ट्रेंथ रिडक्शन, कोड मूवमेंट, डेड कोड एलिमिनेशन. ये टर्म्स आपने सारे सुने होंगे, ये सारे के सारे नाम आपने सुने होंगे. आई होप दैट यू ऑल आर अवेयर ऑफ इट एज वेल. वील स्टार्ट वन बाय वन विद दीज टेक्निक्स. ठीक है, जस्ट गिव मी 2 minutes. Just give me 2 minutes everyone.
Yes, okay. So we'll start one by one. सबसे पहले what we have compile time evaluation. ठीक है, compile time evaluation में, अच्छा एक मिनट रुको, just give me a second. ठीक है, सो कंपाइल टाइम इवेल्युएशन, अब इसका क्या मतलब है कि जो भी आपके एक्सप्रेशंस है, whenever you are running them and you are calculating the compile time, so the compile time should be less. ठीक है, so compile time should be reduced. So सबसे पहले इसका है constant folding. Now from the name only you are able to understand that we are having a constant. Suppose in our expression we are having a constant and we are trying to reduce the constant by uh, fixing it with its fixed value. ठीक है, so क्या बोल रहे हैं वो, this technique involves folding the constants. The expressions that contain the operands having constant values at compile time are evaluated. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ आपके operands होंगे, ठीक है, जिनकी कुछ कांस्टेंट वैल्यूज होंगी. सो कंपाइल टाइम पे वी विल इवैल्यूएट देम. ठीक है, एंड देन दीज वैल्यूज विल बी रिप्लेस्ड बाय द एक्सप्रेशंस जो कहीं भी मतलब कैसे वो बोल रहे हैं कि सपोज यहाँ पे एक स्टेटमेंट, ये आपका कोड है, ठीक है, यहाँ पे यू आर कैलकुलेटिंग a इक्वल टू b प्लस सी, या सपोज यू आर ओनली कैलकुलेटिंग b प्लस सी एंड द वैल्यू ऑफ b प्लस सी इज फिक्स. ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल्स है आपके b दैट इज 5 एंड c दैट इज 10. सो यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं a b प्लस c अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज 15. सो कहीं भी इन द एंटायर प्रोग्राम इफ वी आर रेफरिंग टू b प्लस c अगेन, सो व्हाट आई विल डू, आई विल कैलकुलेट दिस वैल्यू once I'll calculate this value while compiling it in my compilation process. And जहां पे भी दोबारा मुझे कहीं भी b plus c मिलेगा, I will replace that value with 15. ठीक है, so this is your constant folding. So what they are saying that the expression contain the operands having constant values at compile times are evaluated, and those expressions are then replaced with their respective results. Example जैसे circumference of circle is pi r, right? Pi r, that is 22 by 7 multiply by, sorry, 2 pi r, it is 2 pi r, or we can say it as pi d, that is circumference of circle pi into diameter. ठीक है, so this technique evaluates the expression 22 by 7 at compile time. compile time पे उसने क्या किया, compile time पे उसने कैलकुलेट किया कि इसकी जो वैल्यू है वो है 3.14, एक कांस्टेंट टर्म है ये. ठीक है, द एक्सप्रेशन इज देन रिप्लेस विद इट्स रिजल्ट. तो अब कहीं भी जब हम पाई की रेफर करेंगे पाई को, वी विल ऑलवेज यूज दैट 3.14 इन द एंटायर प्रोग्राम. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है जिसको आप इवैल्यूएट कर रहे हो, तो उस कांस्टेंट को आप यू कैन फोल्ड इट विद इट्स ओरिजिनल वैल्यू, जिससे कि आपका टाइम सेव हो व्हाइल कंपाइलिंग इट. ठीक है, ये हो गया आपका कांस्टेंट फोल्डिंग. Next आपका constant propagation. So what is it? In this technique, if some variable has been assigned some constant value, then it replaces that variable with its constant value in the further program during compilation. But इसका क्या वो है कि the condition is that the value of the variable must not get altered in between. So what they are saying basically, अगर मैंने यहाँ पे b की वैल्यू फिक्स कर दी 5 और c की वैल्यू फिक्स कर दी 6, और मैं यहाँ पे b प्लस सी एक्सप्रेशन को मैंने 11 से रिप्लेस कर दिया है,
और आगे मेरे प्रोग्राम में कहीं भी b प्लस सी यूज हो रहा है, सो आई एम यूजिंग 11 इन इट्स प्लेस। सो बी और सी की वैल्यू फिक्स रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे b और c की वैल्यू 5 एंड 6 है, बट यहाँ पे b एंड c की वैल्यू 6 एंड 6 हो गई, देन आई वोंट बी एबल टू यूज दिस 11 ओवर हियर बिकॉज द रिजल्ट विल बिकम 12। सो यही बोल रहे हैं, इन दिस टेक्निक इफ सम वेरिएबल हैज बीन असाइंड सम कांस्टेंट वैल्यू, किसी भी वेरिएबल को आपने कोई कांस्टेंट वैल्यू असाइन कर दी है एंड यू आर रिप्लेसिंग दैट वेरिएबल विद दैट कांस्टेंट वैल्यू, सो you should not change this value throughout the program। जैसे कि एग्जाम्पल है पाई इज इक्वल टू 3.14, रेडियस इज इक्वल टू 10, एरिया ऑफ सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दिस टेक्निक सब्स्टिट्यूट्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स पाई एंड रेडियस एट कंपाइल टाइम। तो आपका आंसर आ गया 3.14 इंटू 10 इंटू 10, मतलब आपका एरिया आ गया 314। तो अब पूरे प्रोग्राम में अगर कहीं भी एरिया ऑफ सर्कल को रेफर किया जाएगा, सो वी विल नॉट कैलकुलेट द एंटायर वैल्यू अगेन, वी विल सिंपली यूज 314। So this is your constant propagation, मतलब आप एक constant value को आगे propagate कर रहे हो in your further program, that is constant propagation। Next is common sub expression elimination। सबसे पहले तो common sub expression क्या हुआ, the expression that has been already computed before and appears again in the code for computation। मतलब कि ऐसा कोई expression जो जैसे कि अभी आ रहा था ना b multiply c, दो बार आ रहा था b मल्टीप्लाई सी, लाइक वी वर हैविंग a प्लस b मल्टीप्लाई सी, a माइनस b मल्टीप्लाई सी, लाइक दिस वन। ठीक है, सो नाउ दिस b मल्टीप्लाई c हैज बीन कंप्यूटेड पहले, है ना, वी हैव कंप्यूटेड दिस ऑलरेडी, सो वी कैन नाउ एलिमिनेट दिस, वी कैन यूज दिस वैल्यू ओवर हियर। So this is your common sub expression, that is the expression that has already been computed before and it appears again in the code for computation। तो नाउ कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन क्या है, दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स एलिमिनेटिंग दीज कॉमन सब एक्सप्रेशंस, द रिडंडेंट एक्सप्रेशंस आर एलिमिनेटेड टू अवॉइड देयर रिकॉम्प्यूटेशन। जैसे कि आप ये देखो, कोड बिफोर ऑप्टिमाइजेशन, s1 is equal to 4 multiply I, s2 is equal to a of s1, s3 is equal to 4 multiply j, s4 is equal to 4 multiply I, s5 equal to n, s6 is equal to b of s4 plus s5। अब यहाँ पे s1 में भी आपने कैलकुलेट किया है 4 मल्टीप्लाई आई, और s4 में भी यू आर डूइंग द सेम थिंग, दैट इज 4 मल्टीप्लाई आई। सो दिस इज योर रिडंडेंट एक्सप्रेशन। सो व्हाट आई विल डू इज I will remove this s4 and जहां पे भी s4 रेफर किया जा रहा है I will simply replace it with s1। yes, आपका जो s1 और आपका जो एक्सप्रेशन है 4 मल्टीप्लाई बाय आई, 4 मल्टीप्लाई बाय आई क्या है, आपका रिडंडेंट एक्सप्रेशन है, बिकॉज वो यहाँ पे भी आपने कंप्यूट किया s1 पे भी एंड s4 पे भी आप उसको कंप्यूट कर रहे हो, दैट इज योर कॉमन सब एक्सप्रेशन। अब विद दिस कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन में क्या होगा कि आई विल एलिमिनेट दिस, एलिमिनेट मतलब आई विल डिलीट दिस स्टेटमेंट। सो यहाँ पे देखो कोड पे s4 है नहीं, एंड जहां कहीं पे भी आई एम रेफरिंग टू s4 आई विल रिप्लेस इट विद s1, बिकॉज अल्टीमेटली s1 एंड s4 जो है वो सेम ही आपका वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। s1 भी 4 मल्टीप्लाई आई कर रहा है, s4 भी 4 मल्टीप्लाई बाय आई कर रहा है, तो इसीलिए ये आपका कोई एरर क्रिएट नहीं करेगा। बट लेकिन यस, यू हैव टू मेक दिस चेंज कि s4 जहां भी यूज हो रहा है वहां आप s1 को चेंज कर दो, अदरवाइज इट विल सर्च फॉर s4 और s4 आपके कोड में होगा नहीं, इट विल जनरेट एन एरर। सो दिस इज योर कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन। फिर नेक्स्ट है आपका डेड कोड एलिमिनेशन। नाउ डेड कोड क्या हो गया, डेड कोड बेसिकली आर दी स्टेटमेंट्स व्हिच ईदर नेवर एग्जीक्यूट और आर अनरीचेबल, मतलब या तो कभी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ऐसी कंडीशंस उनकी है नहीं, या वो अनरीचेबल है, या फिर देयर आउटपुट इज नेवर यूज्ड। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूं वाला कंसेप्ट, सपोज इट इज a इज इक्वल टू 5,
ठीक है, ये आपका प्रोग्राम है। सपोज यहाँ पे आपका a इज इक्वल टू 5, ठीक है, फिर b इज इक्वल टू a, लेट्स से मल्टीप्लाई बाय 2 है, सो मल्टीप्लिकेशन विल टेक टाइम, मल्टीप्लिकेशन इज अ एक्सपेंसिव ऑपरेशन। c इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू a प्लस c, तो a और c का यूज हो गया। e इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई c, अगेन a प्लस c का यूज, ठीक है। f इज इक्वल टू 8, g इज इक्वल टू c प्लस f, और यहाँ पे मैं करा रही हूँ प्रिंट d एंड g। तो बेसिकली ये और ये जो एक्सप्रेशन है ना, इनका यूज हो रहा है, मतलब ना ही ये प्रिंट हो रहे हैं, ना ही इनका कहीं प्रोग्रामिंग इनके आउटपुट्स का यूज हो रहा है। सो दे आर योर डेड कोड, because their outputs are not being used and they are also not being used, but they are computationally very expensive because they are the only one that are using multiplication operation, rest all are using plus. So multiplication is costly as compared to addition. So this is your dead code. So dead code is basically what? Dead code are the statements that are never executes or are unreachable or the output is of no use. So यहाँ पे आप देखो कोड, अगर देखो ऑप्टिमाइजेशन से पहले i की वैल्यू है 0, इफ i इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू x प्लस 5। अब आप ये सोचो, जब आपने i की वैल्यू पहले ही 0 इनिशियलाइज कर दी, ये आपका कोड है, तो ये वाला जो if पार्ट है वो कभी रन करेगा ही नहीं, बिकॉज i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू है 0, कंडीशन है कि इफ i इक्वल टू 1, i की वैल्यू 1 है ही नहीं, i की वैल्यू हम पहले फिक्स कर चुके हैं 0, सो कोड आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन विल बी i इक्वल टू 0 ओनली, बिकॉज ये पूरा इफ स्टेटमेंट जो है, पूरा इफ ब्लॉक जो है वो यूजलेस हो गया, डेड हो गया वो कोड। यस, तो ये हो गया आपका डेड कोड एलिमिनेशन। फिर नेक्स्ट है आपका कोड मोशन। अब कोड मोशन क्या है? दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ कोड। मतलब क्या, बेसिकली कोड मोशन हम कब यूज करते हैं? कोड मोशन यूज करते हैं हम लूप के केस में, ठीक है। द कोड प्रेजेंट इनसाइड द लूप इज मूव्ड आउट इफ इट डज नॉट मैटर वेदर इट इज प्रेजेंट इनसाइड और आउटसाइड। मतलब कभी कभी क्या होता है, आपने नोटिस किया हो कि कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो लूप में तो होते हैं, ठीक है, बट अगर हम उन्हें लूप के बाहर भी शिफ्ट कर दें देन ऑल्सो उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात की है मैंने i इक्वल टू 0 समथिंग, आई वेरिएबल की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे आप i को रेफर कर रहे हो, यहाँ पे आपने x को रेफर किया, तो x और x को आपने सपोज एक कांस्टेंट से ऐड कर रहे हो, तो इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है इस लूप से। So I can write it outside the loop and then I can do my computation because it will, बिकॉज अगर लूप में चल रहा है तो जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार ये एक्सप्रेशन रीरन होगा, यस, रिकम्प्यूट होगा, यस और नो। अगर ये लूप मेरा सपोज 5 टाइम्स चल रहा है तो आई एम एडिंग बेसिकली x विद द कांस्टेंट 5 टाइम्स एंड आई एम जनरेटिंग द सेम रिजल्ट एवरी टाइम, x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। मान लो x प्लस 0 कर दूं मैं, तो x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है यहाँ पे, every time it is getting the same result, लेकिन it is being computed again and again, just for example लिया मैंने, ठीक है। तो ये आपका होता है कोड मोशन, कि whether whatever the expression of code that is present inside the loop, if it is not affecting whether I keep it inside or outside, I can move the code out of the loop. Such a code unnecessarily gets executed again and again with each iteration of the loop, leading to wastage of time at runtime. So अगर आप यहाँ पे देखो code before optimization for integer j equal to 0, j is less than n, j plus plus, x equal to y plus z, a of j is equal to, ये आपका multiplication है, ठीक है, x 6 multiply by j, this is multiplication। तो यहाँ पे आप इस स्टेटमेंट का यूज देखो, कहीं भी इस पूरे फॉर लूप में x y z का जिक्र नहीं है, right? In this entire for loop I am not talking about x, y or z, but still every time I have to compute this statement. So what I can do is I can shift this upside, I can shift this code outside the loop. तो अब मेरा जो लूप हो जाएगा वो सिर्फ j के कंसर्न में रहेगा, ये स्टेटमेंट सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये स्टेटमेंट पूरा आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स इट विल गेट एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन इफ आई कीप इट इनसाइड द लूप। So this is your code motion. Then we have strength reduction. Strength reduction basically means replacing the high strength operator by the low strength. तो अगर आपका ये कोई स्टेटमेंट है जैसे b is equal to a multiply by 2,
ठीक है। सो मल्टीप्लीकेशन ध्यान रखना, मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज अ हाई स्ट्रेंथ ऑपरेटर एज कंपेयर टू प्लस और माइनस। तो आई कैन रिप्लेस दिस विद b इज इक्वल टू a प्लस ए, सेम चीज है। अगर मैं 15 इंटू 2 करूं या मैं 15 प्लस 15 करूं, रिजल्ट विल कम सेम। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम रिड्यूसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ दिस एक्सप्रेशन बाय रिप्लेसिंग इट विद अ लो स्ट्रेंथ ऑपरेटर। जैसे अगर आपका ये है i is equal to 1 while I is less than 10, y is equal to I multiply by 4, यहाँ पे आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, है ना, एंड दैट इज i लेस देन 10 है। तो आप इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हो, i is equal to 1, t is equal to 4, while t is less than 40। अब t को क्यों आप 40 ले रहे हो, क्योंकि क्योंकि ऑब्वियसली आपको ये स्टार्टिंग में बोला गया था कि व्हेन यू आर ऑप्टिमाइजिंग दी योर कोड शुड नॉट चेंज, योर कोड शुड नॉट चेंज, राइट। I was less than 10 and I was 1 to 10 something। यहाँ पे the condition is on t। अब कंडीशन i पे नहीं रही, कंडीशन t पे आ गई है। So t is what basically, t is something you are computing, that is y equal to t, क्या आपने y equal to t, सबसे पहले तो ये आया, और t की वैल्यू हो गई i मल्टीप्लाई 4 है, बट हम इसको क्या स्विच कर रहे हैं, इसको हम कर रहे हैं t प्लस 4। तो यहाँ हमने क्या किया, t को इनिशियलाइज ही 4 से कर दिया। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट होता y वैल्यू 4, तो हमने उसको इनिशियलाइज ही t 4 से कर दिया है। तो अब वी विल बी एडिंग इट विद 4 एवरी टाइम वी विल एनकाउंटर दिस, ठीक है। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट कोड हमारा चेंज नहीं होना चाहिए इवन इफ वी आर रिड्यूसिंग दी स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन दे हैव एडेड 2-3 लाइंस मोर एंड दे हैव परफॉर्म दी एडिशन इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। Then we have phases of optimization. So basically we have two phases, global optimization, local optimization. So global optimization is transformations are applied to large program segments that include functions, procedures and loops. And local optimization is transformations are applied to small blocks of statements. Local optimization is done obviously प्रायर टू ग्लोबल ऑप्टिमाइजर, पहले आप छोटे ब्लॉक्स पे ऑप्टिमाइजेशन करोगे, फिर आप बड़े ब्लॉक्स पे आओगे, है ना। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि पहले आप लोकल ऑप्टिमाइजेशन करते हो, उसके बाद आप ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन करते हो, ठीक है। तो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस जो पूछे गए थे एग्जाम में। आई जस्ट गिव यू टाइम, व्हाट इज इट, इन कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन, ये कब आया था, ये आपका 2016 का क्वेश्चन है। In compiler optimization, operator strength reduction uses mathematical identities to replace slow math operations with faster operations, ठीक है। मतलब हम हाई ऑपरेशन ऑपरेंड को लो से रिप्लेस कर रहे हैं बेसिकली। Which of the following code replacement is an illustration of operator strength reduction? इसमें से कौन सा है जो strength reduction को यूज कर रहा है, बताओ। सोचो, अपना सोच के बताओ। सो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट इज रिप्लेस p प्लस p बाय 2 मल्टीप्लाई बाय p। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो कि p प्लस p को आप 2 मल्टीप्लाई p से रिप्लेस कर दो, मतलब ये आप कर दो अपने स्टेटमेंट में। सो ये आपका लो टू हाई है ना, दिस इज नॉट हाई टू लो, दिस इज लो टू हाई। सो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। और 3 प्लस 4 बाय 7, ठीक है, ये जो आपका स्टेटमेंट है दैट इज 3 प्लस 4 बाय 7, दिस इज नॉट स्ट्रेंथ रिडक्शन, दिस इज कांस्टेंट फोल्डिंग। मैंने बताया था आपको कि आप कांस्टेंट वैल्यूज को रिप्लेस कर दो, सो दिस इज योर कांस्टेंट फोल्डिंग। सो ऑप्शन 1 वैसे ही गलत हो गया। देन ऑप्शन 2 इज रिप्लेस p मल्टीप्लाई बाय 32,
P ये आपका मल्टीप्लीकेशन है ना. नेक्स्ट की बात करें, P मल्टीप्लाई बाय 32 टू P लेफ्ट शिफ्ट बाय 5, है ना. सो ये एक आपका हाई ऑपरेशन है और ये आपका लो है. शिफ्टिंग एक लो ऑपरेशन है, ठीक है. सो दिस कैन बी एन ऑप्शन, दिस कैन बी एन ऑप्शन. रिप्लेस P मल्टीप्लाई 0 बाय 0, ये तो कोई मतलब ही नहीं है. अगेन दिस इज नॉट योर स्ट्रेंथ रिडक्शन, तो दिस हैज नथिंग टू डू विद स्ट्रेंथ रिडक्शन. फोर्थ इज रिप्लेस. अब ये आपका क्या है, ये आपका है लेफ्ट शिफ्ट, है ना. ये लेफ्ट शिफ्ट है और लेफ्ट शिफ्ट को आप रिप्लेस किससे कर दो, मल्टीप्लीकेशन से. तो लेफ्ट शिफ्ट आपका लो ऑपरेटर है और मल्टीप्लीकेशन आपका हाई ऑपरेटर है. सो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 भी रॉन्ग हो गया. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज रिप्लेस P मल्टीप्लाई बाय 32 बाय P लेफ्ट शिफ्ट 5. ठीक है. सो जो मल्टीप्लीकेशन है वो एक हाई ऑपरेटर है और जो लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट है वो लो ऑपरेटर. Next, in dash, the bodies of two loops are merged together to form a single loop, provided that they do not make any references to each other. मतलब आपके पास दो लूप्स हैं, आपने उन्हें मर्ज करके एक सिंगल लूप में कन्वर्ट किया, बट द कंडीशन इसकी वो आपस में कोई रेफरेंस ना करें, उन दोनों लूप्स का कोई रेफरेंस ना हो आपस में. तो क्या आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग? लूप अनरोलिंग, स्ट्रेंथ रिडक्शन, लूप कॉन्कैटिनेशन, लूप जैमिंग. सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ रिडक्शन तो ऑप्शन में है ही नहीं, बिकॉज स्ट्रेंथ रिडक्शन का लूप से कोई कनेक्शन है नहीं जो यहाँ पर रेफरेंस हो रही है. आप बाकी का सोचो, लूप अनरोलिंग, लूप कॉन्कैटिनेशन, लूप जैमिंग. ये भी आपका 2016 का ही क्वेश्चन है. सो क्या आंसर होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर है लूप जैमिंग. ठीक है. लूप जैमिंग में वी व्हाट वी डू इज वी टेक two loops and we merge them into a single loop, but they do not make any reference to each other. लूप अनरोलिंग और लूप कंकैटिनेशन क्या है? यहाँ पे क्या लिखा है? इन लूप कंकैटिनेशन बॉडीज ऑफ टू लूप्स आर कॉन्कैटिनेटेड टुगेदर टू फॉर्म अ सीरीज ऑफ लूप. लूप कंकैटिनेशन समटाइम्स हेल्प्स टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी. लूप कंकैटिनेशन भी वही कर रहा है, ठीक है. वी आर concatenating two loops to form a single loop, to form a series of loop, but यहाँ पे जो condition है, they do not make any reference to each other, ये condition jamming की है. ठीक है. And in loop unrolling, we try to optimize a program's execution speed. It is also known as space-time trade-off. It refers to a method of decreasing number of times a loop is executed. So loop unrolling में basically we are decreasing. अगर कोई loop 10 times execute हो रहा है, so our focus is to reduce the execution to at least 5 times, let's say. ठीक है. सो लूप अनरोलिंग हो गया कि वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द नंबर ऑफ टाइम्स द लूप इज एग्जीक्यूटिंग. लूप concatenation हो गया, we are concatenating two or more loops into a single or series of loop. Loop jamming is also the same as loop concatenation, that we are concatenating or we are merging two loops to form a single loop, but in loop jamming we have this condition that they do not make reference to each other. ठीक है. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ये भी आपका आई थिंक 2016-17 का ही है. ये भी रिप्लेसिंग द एक्सप्रेशन 4 मल्टीप्लाई बाय 2.14, मतलब आपका एक्सप्रेशन है 4 मल्टीप्लाई बाय 2.14 बाय 8.56 इज नोन एज. वेरी इजी, आई थिंक इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी. ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन किया है.
कांस्टेंट वे टर्म्स है 4 2.14, उसको आपने मल्टीप्लाई करके 8.56 से रिप्लेस कर दिया. सो वेन एवर यू हैव दिस सेम एक्सप्रेशन, whenever you will have 4 multiplied by 2.14, you will replace it by 8.56. क्या आंसर होगा इसका? The options given are constant folding, induction variable, strength reduction, co-reduction. Strength reduction हो नहीं सकता, co-reduction हो नहीं सकता, क्योंकि स्ट्रेंथ रिडक्शन में वी आर रिप्लेसिंग इट विद हाई प्रायोरिटी को लो प्रायोरिटी से रिप्लेस करते हैं. ठीक है, ये आपका मल्टीप्लीकेशन यूज हो रहा है, बट यहाँ पे कोई ऑपरेटर यूज नहीं हो रहा है. दिस इज नॉट प्रायोरिटी बेस्ड. ठीक है, ऑपरेटर के बेसिस पे नहीं हो रहा है. यहाँ पे कोड भी रिड्यूस नहीं हो रहा है हमारा. कोड रिडक्शन तो हमारा कोई ऑपरेशन है भी नहीं. नाउ वी हैव टू थिंग्स, कांस्टेंट फोल्डिंग या इंडक्शन वेरिएबल. सो द करेक्ट आंसर इज कांस्टेंट फोल्डिंग. आई थिंक यू ऑल नो दिस बिकॉज वी आर यूजिंग टू कांस्टेंट्स को हम फोल्ड कर रहे हैं बेसिकली इनटू अ सिंगल कांस्टेंट. वी आर यूजिंग दिस वैल्यू. व्हाट इज इंडक्शन वेरिएबल? Induction variable is a variable that increase or decrease by a fixed amount of time on every iteration of the loop. मतलब अगर सपोज कोई लूप है हमारा और लास्ट में मैं x को 1 से रिप्लेस इंक्रीज कर रही हूँ एवरी टाइम आई एम एग्जीक्यूटिंग इट, तो ये मेरा इंडक्शन वेरिएबल हो जाएगा. मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक कांस्टेंट टर्म से मैं उसको ऐड कर रही हूँ या डिक्रीज कर रही हूँ. मतलब इट इज ऑफ दिस टाइप, i is equal to i plus c, and this c is what? This c is a constant. So this is your induction variable. Variable increased or decreased by a fixed amount of time. Fixed amount मतलब एक constant time on every iteration of the loop. So ये आपका हो जाएगा इंडक्शन वेरिएबल. इसलिए ये ऑप्शन आपका इंडक्शन वेरिएबल का भी नहीं है. दिस इज योर कांस्टेंट फोल्डिंग. ठीक है, तो ये आपका हो गया ये आपके हो गए इंटरमीडिएट कोड जनरेशन एंड कोड ऑप्टिमाइजेशन. तो हमने क्या क्या, जस्ट क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि हमने क्या क्या स्टडी कर लिया आज. टुडे वी स्टडीड अबाउट कि व्हाट इज कोड जनरेशन, एंड देन वी स्टडीड रिप्रेजेंटेशंस, दैट इज थ्री एड्रेस कोड. ठीक है, थ्री एड्रेस कोड को वी हैव थ्री वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग. वन इज quadruple, one is triples, and another one is indirect triples. ठीक है, उसके बाद we have postfix, उसके बाद we have parse tree. ठीक है, in code optimization we have studied different types of ways we can eliminate, we can optimize the code, that is constant folding, then we have constant propagation, then we have dead code elimination, then we have code motion, then we have common sub expression elimination, and उसके बाद we have strength reduction. सो ये क्वेश्चंस, इससे आपके क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, ये इससे क्वेश्चंस आपके आएंगे. अभी व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग नो क्वेश्चन आंसर्स, जब हम डिस्कस करेंगे तब यू विल सी कि क्वेश्चंस जो हैं फ्रॉम दीज टॉपिक्स दे हैव बीन आस्क्ड लेटली. सो अब कल से वील बी स्टार्टिंग विद डीबीएमएस, है ना. डीबीएमएस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस विल स्टार्ट. सो आई विल बी शेयरिंग, I'll be uploading इस वीडियो के बाद हो सकता है I'll upload one or two more video. तो प्लीज आप उसको go through कर लेना. कल से we'll have this DBMS practice session. Most probably it will be an online session, that is live session. But somehow somewhere it can be possibility कि मैं upload कर दूँ video. But in that upload also I'll be keeping a timer of 1 minute. So I'll suggest you all कि please उस टाइमर के हिसाब से अपनी प्रैक्टिस करना आप लोग, because 1 minute is sufficient and 1 minute is more than enough for you to try the question. ठीक है, so that's it for this video and thank you everyone, take care, bye bye.